اس لڑکے نے میرے اوپر پیشاب کیا. دیکھیں چھوٹی بچی تو پیشاب ہی کہے گی نا, بڑی ہوگی تو وہ کچھ کہتی. جتنا اسے پتا تھا اتنا اس نے کہہ دیا نا. شرم نہیں آنی, شرم ہمیں آنی چاہیے ایسے کام کرنے وقت. جب ہم کسی کی بچی کو ایسے کرتے ہیں تو گھر میں بھی ماں بیٹی ہوتی ہیں نا, ان کو کریں, وہ دیکھیں کہ پیشاب کیا ہوتا ہے. کسی کی بیٹی کو دکھاتے ہو یہ پیشاب کیا ہوتا ہے, گھر میں دکھانے لگے پتا ہمارا بیٹا جوان ہو گیا. کہ آپ اس دن باہر کیا کرنے گئی تھی؟ میں ماما نے کہا کہ اس کو بلا کے لا کے بلب بھی گوانا ہے. اچھا. وہ کہہ رہا میں بلانے گئی ہوں تو اس نے کہا اندر آؤ. اچھا. اس نے کہا 2 منٹ سے اس نے اپنی شلوار اتاری, اس نے میری بھی اتاری ہے, تو اس نے میرے اوپر واش روم کر دیا. لیکن یہ دیکھو کتنی بار ہمیں یہ بات بار بار دہرا کر کہنی پڑے گی کہ یہ ہماری بچی ہے. یہی بات اگر آپ کی بچی آپ کو کہے تو آپ کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ پولی چھوڑ دے دو, اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی بلا لو کہ آنے دو, کیا ہوگا, کوئی 10-20 لاکھ روپیہ ہم سے لے لو, ہمیں دے دو اپنی بہنیں بیٹیاں, ہم بھی ایک دن کا حوض کا شکار کر کے کہہ دیں گے پیسے لے لو جتنے ہم سے لے سکتے ہو آپ لوگ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج پھر بہت افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ایک اور معصوم بچی جو کہ شیخ پورہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہیں. ان جیسی بہت سی بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا, لیکن ہماری ریاست ناکام رہی ان درندوں کو مارنے میں. ہماری ریاست ان درندوں تک ہی نہیں پہنچ پائی جنہوں نے ہمارے فیوچر کو خراب کیا. یہ معصوم سی بچی کیا بول سکتی ہوگی؟ ایک 7 سالہ بچی کو کیا معلومات ہوں گی؟ ایک 7 سالہ بچی جو کہ پریپ میں پڑھتی ہے, اسکول میں کیا یہ سیکھنے کے لیے جاتی ہے کہ درندے کیا کرتے ہیں؟ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دیا تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ فیوچر میں جا کے ہمارے بچے کیا آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, کیا سکھائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ریاست اگر اسی طرح ان درندوں کو چھوڑتی جائے گی تو ہمارا ملک بہت ہی پیارا ملک بن پائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان درندوں کو سزا دیے بغیر چھوڑتے جائیں گے تو ہماری ریاست مدینہ کی ریاست بن جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہی رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے یہ ملک مولویوں کا ملک رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے یہ ملک ہمارا رہے گا؟ میرے ساتھ یہ 7 سالہ بچی موجود ہے جس کے ساتھ ایک درندے نے اس وجہ سے زیادتی کی کہ بیچاری معصوم بچی اس کو بلانے کے لیے گئی تھی کہ ہمارے گھر میں لائٹ لگا دیں. میرے ساتھ بچی کے والد صاحب بھی موجود ہیں, ان سے جانے کے مکمل واقعہ کیا پیش آیا تھا. سر مجھے یہ بتائیے کہ بچی کہاں گئی تھی, کیا کرنے گئی تھی؟ السلام علیکم. بچی کو میری والدہ نے بھیجا تھا, اس کو جو بلا کے لوٹیشن کو ہمارے گھر میں بلب لگا دیں. اس نے کہا چاچو میری ماما کہہ دی کہ بلب لگا دیں گا, ہمارا بلب فیوز ہو گیا. جب اس نے کہا بیٹا آ کے بیٹھ جاؤ اندر, وہ اندر پر نہیں بیٹھا تھا یا کام کر رہا, واللہ عالم میں گھر میں نہیں تھا, نہ مجھے پتا تھا. امی نے بھیجا تھا, ایک مرتبہ 2 پہلے وہ کام کر چکا تھا ہمارے گھر میں آ کے, استری خراب ہوئی تھی وہ ٹھیک کروائی تھی, 1-2 چیزوں خراب ہوئی تھی مشین وغیرہ وہ ٹھیک کروائی تھی. اسی بہیو سے اس کو بھیجا تھا, جو بیٹا جا کے نا بلا کے لے آؤ, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ چھوٹی ہو, آپ کو کسی نے کیا کہنا, ہمارے دل میں تو یہ بات نہیں تھی جو اس نے بات کر دی ہے. لیکن سے کہا بیٹا چاچو میرے ہمارے گھر میں آ کے بلب لگا دو. اس نے اندر بیٹی کو بیٹی یہاں پہ بیٹھ جاؤ. گھر میں اس کا والد تھا, اس کی والدہ تھی, وہ اندر تھی, ساتھ میں اس نے بیٹھ کے کام کرتا تھا وہ, لیکن تھوڑی بیٹھ کے تھوڑی نزدیک نہیں تھی, تھوڑی آگے بیٹھی تھی, سین پیچھے تھا. لیکن جب 10-15 منٹ بعد امی نے توجہ نہیں کی تھی کہ بچی آئی کیوں نہیں. جب بچی آئی ہے تو دیکھا تو بچی نا بالکل سیم ہی ہوئی ہے, توجہ نہیں کی, ماں باپ امی نے توجہ نہیں کی. کوئی مسئلہ شاید کسی سے لڑ گئی ہے یا کسی نے مارا یا کسی دبکایا گیا, ویسے امی اس لڑکے نے میرے اوپر پیشاب کیا. دیکھیں چھوٹی بچی تو پیشاب ہی کہے گی نا, بڑی ہوگی تو وہ کچھ کہتی. جتنا اسے پتا تھا اتنا اس نے کہہ دیا نا. شرم نہیں آنی, شرم ہمیں آنی چاہیے ایسے کام کرنے وقت. جب ہم کسی کی بچی کو ایسے کرتے ہیں تو گھر میں بھی ماں بیٹی ہوتی ہیں نا, ان کو کریں, وہ دیکھیں کہ پیشاب کیا ہوتا ہے. کسی کی بیٹی کو دکھاتے ہو یہ پیشاب کیا ہوتا ہے, گھر میں دکھانے لگے پتا ہمارا بیٹا جوان ہو گیا. ماں باپ کو شرم ہونی چاہیے. اگر بیٹا جوان ہو گیا تو اس کو شادی کر دیں. کسی کی بچیوں کے ساتھ عزت کھیلنے سے کوئی موقع کسی کو حق نہیں ہے کوئی بھی. ہم مسلمان ہیں, ہندو نہیں ہیں. ہم ہندو ہوتے تو چلو شام ہم بیٹھ جاتے, ہم مسلمان ہیں, اللہ کے نبی کے قدم میں پڑھتے ہیں. اب چھوٹی معصوم بچوں کو یہ شکار بنانا یہ انسانیت نہیں ہے, یہ درندگی ہے. جب اس نے بتایا آ کے کہ امی اس نے میرے اوپر پیشاب کیا, لیکن میری والدہ نے توجہ نہیں کی, اس کی ماما نے توجہ نہیں کی, بیٹی شاید جھوٹ بول رہی ہوگی,
उसने क्या मैंने कुछ नहीं किया चले गया वो। इसने दिल में अपने बात रख ली कि मैं किसको खुल के बताऊं, घर में तो किसी ने मेरे पास सुनी नहीं। इसको बुखार हो गया, रात को 103 बुखार है इसके। मैंने कहा बेटा वो आपको दवाई ला के दूँ? मैंने कहा बाबा मैंने दवाई नहीं लेनी, मैं ठीक हूँ। मैं कहा बेटा आपको बुखार हुआ दवाई ले लो, नहीं ली। रात को इतना बुखार हो, दिल में बात खाई जा रही थी उसके। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अगले दिन उसने अभी फूफू को बता दी, वरना हमारी बच्ची तो मर जाती थी। दिल में बाढ़ लगे तो बंदा बैठ जाए ना, मर जाता है वो, या दिल में बाढ़ ना निकले तो। फूफू को बताया कि मेरे बस यह वाक़या बनाया। फूफू ने आके, फिर मेरी बाजी ने आके मेरी अम्मी से, मेरी वाइफ से पूछा आके कि आपको इसने बताया नहीं? बताया, लेकिन हमने तवज्जो नहीं की। हमने ये समझा शायद बच्ची है, किसी ने पानी पर फेंक दिया, तो ये कह रही कि मेरे ऊपर किसने पेशाब कर दिया। हमें क्या पता था कि हमारी बच्ची से ये ज़्यादती हुई है। जो किसी की बच्ची से ज़्यादती ऐसी हो, जो हमारी बच्ची से ज़्यादती हुई है। सभी बेटियां बराबर होती हैं। अगर किसी की बेटी को बेटी समझोगे ना तो तुम्हारी बेटी की भी इज्जत होगी। आप पुलिस के सामने हाजिर हुए हैं तो आपने SHO को बताया? भाई पे कॉल की, मैं घर पे नहीं था, मेरी बाजी ने फ़ोन किया, कहा कहाँ पे? मैं क्या बाजी में गाड़ी पे हूँ। उसे बोला जल्दी घर आओ। मैंने कहा हुआ क्या? उनका ये मसला बन गया। मैंने होशो हवास में गाड़ी लेकर वापसी आया। ये बात सुन ली है, लेकिन अगर होश गम कर बैठा ना तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैंने होशो हवास में घर आया, मैंने 15 पे कॉल की। SHO साहब आए, उन्होंने वकूआ देखा, सारा देखा। उन्होंने क्या सारा, उन्होंने भी ये बच्ची से बयान लिया। देखे बच्ची ने सारा बयान दिया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश है। हम कैसे बोलें? माँ बाप अपनी बच्चियों को जो लफ्ज़ है वो नहीं बोलता, कोई बोल देता है लेकिन माँ बाप नहीं बोलता। अगर माँ बाप ही बोलते फिर माँ बाप कौन सा रह गया? अगर हम अपनी बच्ची के अल्फाज आपको बताएंगे तो हम माँ बाप नहीं रहेंगे। हमें तो शर्म आ रही है कि हम हमारी बच्ची को उसने ये कुछ दिखा दिया। तो वो अपनी घर में माँ है, बहन है, उसके दिखाए कि मैं जवान हो गया हूँ। किसी को बेटी को क्यों ऐसा काम करते हो? कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ये मुसलमान आपने अपने SHO साहब से कहा था कि इस तरह बच्ची के साथ वाक़या पेश आया, तो क्या आपके घर बहन बेटी नहीं है? SHO साहब ने ऐसी बातें नहीं सुनी। उसने बयान लिखा, उसने बच्ची के बयान लिया कि बेटा क्या हुआ। देखें बच्ची है वो क्या बताएगा, जो उसने आपको बताया उसने SHO साहब को बता दिया। लेकिन तो हम तो मर जा रहे हैं ना। छोटी सी बच्ची, उसे पता लग गया कि पेशाब क्या होता है। अगर बच्ची शादीशुदा है तो वो तो पता उसके होता है, लेकिन 7 साल की बच्ची, उसे पता चल गया पेशाब क्या होता है। हम तो मर जा रहे हैं यार, हम किसी को क्या बताएं। 7 साल बच्ची मेरे साथ बैठी हुई है, मैं इससे क्या बयान लूँ? मैं इससे बुलवाऊँ कि आपके साथ क्या हुआ था? मैं बहुत माजरत के साथ अपने हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सर, अगर आपकी बच्ची के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आए ना तो फिर आप बहुत पछताएंगे कि आपके पास हुक्मरानी भी थी, इक़्तिदार भी रहा, इख्तियारात भी रहे, लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया। बहुत पछताएंगे आप। आज वक्त है, हमारी बहनों बेटियों की हिफाजत कर लें। वक्त हाथ से गुजर गया तो आपकी बहनें बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। बेटा मुझे ये बताओ, क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? प्रेप में पढ़ती हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? सेंट ग्रेस हाई स्कूल। अच्छा, तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? कितने बच्चे हैं? चलो आप ज़हीन हो, क्लास में फर्स्ट आती हैं आप, माशाल्लाह। कि आप उस दिन बाहर क्या करने गई थी? मेरे मामा ने कहा कि उसको बुला के लाओ के बल्ब भी घुमाना है। अच्छा, वो कह रहा मैं बुलाने गई हूँ, तो उसने कहा अंदर आओ। उसने कहा 2 मिनट से उसने अपनी शूज़ उतारी, उसने मेरी भी उतारी है, तो उसने मेरे ऊपर वॉशरूम कर दिया। ये वॉशरूम का लफ्ज़ सुन रहे हैं आप? आपकी रूह कांप जानी चाहिए। बल्कि अगर कोई बड़े ओहदे वाला शख्स ये अल्फाज सुने ना तो वहीं पे डूब के मर जाए। बच्ची की फूफो हैं, तो जब बच्ची पहली दफ़ा आपको बताने के लिए आई थी, बच्ची ने क्या बताया था आपको? अस्सलाम वालेकुम। बच्ची ने बताया था कि फुफ्फो इस आदमी ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की है, इसने मेरे ऊपर वॉशरूम किया। जब उसने वॉशरूम का कहा तो मैं वहीं रुक गई। मैंने उसे पूछा कि बेटा वॉशरूम उसने क्यों किया, तो किस तरह किया तेरे ऊपर? उसने कहा फुफ्फो मुझे अंदर बुलाया। मैंने कहा अंकल आओ हमारे घर बल्ब लगा दो, तो मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुला के तो मुझे लटा के, तो पहले उसने अपनी शलवार उतारी, बाद में मेरी उतार के, तो उसने मेरे ऊपर वॉशरूम किया। लेकिन ये देखो कितनी बार हमें ये बात बार बार दोहरा कर कहनी पड़ेगी कि ये हमारी बच्ची है,
यही बात अगर आपकी बच्ची आपको कहे तो आप क्या सलूक करेंगे उसके साथ? बहुत अच्छे तरीके से सुन लेंगे उसकी बात? नहीं, शर्म से डूब कर मर जाएंगे कि ये क्या हम बच्चों के सुन रहे हैं। खुदाया बस कर दो, ये तमाशा बंद कर दो। तुम्हारी आप लोगों की बहुत मेहरबानी है, बंद कर दो ये तमाशा। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये भी ड्रामे बंद कर दो जो आप लोगों ने खोल रखे हैं। हमें ये ड्रामे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए जो ना पुलिस के पास है, ना कचहरियों के पास है, जजों के पास है। किसी के पास ये इंसाफ नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी पुलिस, जिसके पास पैसा है उसके वकील, जो गरीब है उनकी बेटियों की इज्जत उतार के चलो जी पैसा दो तो इससे बिक जाती हैं। ऐसा समझ तुम्हारी आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि खुदाया ये काम बंद कर दो। नहीं तो वैसे ही इन लोगों को खुली छोड़ दे दो, अपनी बहनों बेटियों को भी बुला लो कि आने दो, क्या होगा? कोई 10-20 लाख रुपया हमसे ले लो, हमें दे दो अपनी बहनें बेटियां। हम भी एक दिन का बसकश करके कह देंगे पैसे ले लो जितने हमसे ले सकते हो आप लोग। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप मजीद हमसे ये बार बार बात ना करवाएं तो बेहतर है। जी, तो हमें खिजर हयात साहब जो कि फोकल पर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानेंगे कि इस सारे मामले को किस तरह से आपने देखा था, किस तरह से आपने कंट्रोल किया और फैमिली को बोल्ड किया कि वो सामने आए, मीडिया के और पुलिस को बयान दे और जो मुलजिम है उसको सजा दिलवाई जाए। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे ये बताइए कि फैमिली को मोटिवेट करना कितना मुश्किल होता है कि वो कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने आए और फिर पुलिस के सामने चाहे बयान दे, FIR कटवाए, इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। आप किस तरह से करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो है उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग खुद भी हमने ली है। वहाँ से हम फैमिलीज़ को मोटिवेट बिल्कुल करते हैं। हमने एक शेखुपुरा में प्रोग्राम भी एक लॉन्च किया हुआ है मास अवेयरनेस सेमिनार के नाम से, जो कि पूरे पंजाब में है। शेखुपुरा में तो हमने उसको फ्लैक्सिस के ज़रिए अवेज़ा किया और उसके स्कूलों में जाते हैं हम, बच्चों को वहाँ अवेयरनेस देते हैं, बच्चों को ब्रोशर तकसीम करते हैं। जैसा कि ये जो जिस वाक़या की आप बात कर रहे हैं आयशा ज़ारा की बच्ची के, ये जब ये इंसिडेंट हुआ है, बच्ची बहुत छोटी सी बच्ची है, बड़ी छोटी सी डोल सी है। जी बिल्कुल, नर्सरी में पढ़ती है, छोटी सी बच्ची है। इसमें ऐसे है कि बच्ची के साथ बल्ब लेने के लिए वो दुकान पे गई है और वहीं पे जाके उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया। अब ये मामला जो है वो तो बेचारे चुप करके बैठ गए थे कि अपनी शर्म से डूब के मर गए कि हम क्या कहेंगे क्या नहीं। जब हमारे इल्म में ये बात आई तो मैंने उसके वालिद की काउंसलिंग की, उसकी वालदा की काउंसलिंग की। उसकी वालदा जो है वो आपको पता ही है, वो बेड रेस्ट पे है। उसकी फुप्पो जो है उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। बच्ची की जो फुप्पो है वो मेरी बात फॉलो कर गई। उन्हें फ़ील हुआ कि हम वाकई ये काम करेंगे, इनके साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस जो मुलज़म है उसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। मेरे जाने से पहले उन्होंने 15 कॉल की थी, पुलिस को बुलाया था। उससे पहले मुलज़म जो है वो फ़रार हो गया हुआ था। मुलज़म जो है वो पुलिस का पहुंच लेट हुई, वक्फा आ गया, उससे मुलज़म को टाइम मिल गया, भाग गया वो। लेकिन FIR लॉन्च हो गई है, इंटरम बेल पे है मुलज़म। बच्ची के साथ जो मामला हुआ है, चले वो तो गया हो, उसके वालिद को ब्रीफ़ किया, उसकी फुप्पो को ब्रीफ़ किया कि जो आयशा ज़ारा है ये समझें कि ये बच्ची को एक मिसाली बना दें। आप ये दूसरों की बच्चियाँ भी आपकी बच्चियाँ हैं, वो भी ज़ारा आयशा और भी को हो सकती है। इस नाम की बदौलत उनको मैंने ब्रीफ़ किया कि ये नाम देखें कितना बड़ा नाम है और आप ये समझें कि आपने ये जहाद करना है। तो वो बड़े डरे हुए थे। उसके वालिद कह रहे थे कि जी मैं यहाँ पे चौधरी रहते हैं, मुझे बड़ा प्रेशर है, मुझे वो कल को कुछ कर न दें। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने, मैंने मैडम सारा अहमद की बहाव पे, मैडम सारा की हदायत पे उनको बड़ा अच्छे तरीके से मोटिवेट किया, जिससे वो बड़ा मोटिवेट बोल्ड हो गए। अब आपको काफ़ी थ्रेड भी आए होंगे, किस तरह से फेस किया फिर उनको? जी रोज़ाना आते हैं थ्रेड, कोई बात नहीं। हमने तो ये जहाद का जो है ना ये अलम उठाया हुआ है। हमने जहाद करना है। बच्चे जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैडम सारा और राना खिज़र को अल्लाह ताला ने कोई ऐसी खसूसियत देख के ये ओहदे पे नवाजा जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। पूरे पंजाब के बच्चे, मैं समझता हूँ कि मैडम सारा कहती हैं कि मैं उनकी वालदा हूँ, ठीक है, मैं ही उनका बाप हूँ। तो ज़ाहिर बात है हम भी उनके ही अंडर सुपरविजन काम कर रहे हैं, उन्हीं का मैं फोकल पर्सन हूँ। तो मैं भी समझता हूँ कि शेखुपुरा के बच्चे, उनका वालिद, उनकी वालदा मैं हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। आधी रात को भी मुझे कोई कॉल करे तो मैं भाग के जाता हूँ।
हम उनके काम करते हैं, बे लॉस करते हैं, तो इसका अजर अल्लाह ने देना है। हमें जितने मर्जी थ्रेड आएँ, हम इन थ्रेड से डरने वाले नहीं। बिल्कुल जी, जो खिजर हयात साहब हैं, इन्होंने और भी कई केसेस में अपना हाथ डाला है और फिर उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। एक इनके पास केस आया था, कराची से थी वो फैमिली और बच्ची को अगवा किया गया था और इस तरह का मामला, तो वो भी हम आपको अगले इंटरव्यू में दिखाएंगे कि खिजर हयात साहब ने कितनी बहादुरी के साथ उस बच्ची को बाजियाब करवाया था। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो खिजर साहब की तरह काम कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं और इनका हिस्सा है मुल्क की तरक्की में, कि ये मुल्क की कामयाबी में हिस्सा डाल रहे हैं, इस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए और इसी तरह के लोग हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।